From horoscopes and newspapers to now real-time astrological consultations on your smartphone, Indian astrology is going through a massive tech facelift. And at the helm of this massive tech facelift is, of course, AstroTalk. AstroTalk is India's largest astrology app, and I'm joined today by Puneet Gupta. He is founder and CEO of AstroTalk. Thank you so much, Puneet, for taking time out. We'll talk everything from astrology trends to business models, from skeptics to believers, and we hope to cover everything that astrology stands for today. Puneet, talk to us about also what was the tipping point where you realized that this could grow to a mainstream business from a niche astrology app. It could go through a mainstream business at what, 1250 crore top line now? Yeah, 1650 top line now. I think when we started, I didn't believe कितना बड़ा हो सकता है. But after spending about 8-9 months talking to a lot of customers, we realized कि there is a lot of demand in India where people want to speak to genuine astrologers, and there was no other platform which was providing that. So when we started working on one-on-one consultation instead of working on कि यार content heavy apps बनाएं जैसे बाकी सारी थी, तो ये हमारे साथ आई थिंक वी गॉट लकी दैट वी एंडेड अप विद सच ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिमांड ऐसे ही बहुत ज़्यादा थी. तो वी रियलाइज कि यार अगर मार्केटिंग अच्छी करेंगे, प्रोडक्ट पे और अच्छा काम करेंगे, तो विल बी एबल टू बिल्ड ए वेरी गुड बिजनेस. Puneet, talk to us about the scale of astrology in India, right? Estimates put it anywhere between a $7 billion market to $15 billion. Tell me, as a market leader, what do you see it as? So again, I think it is very difficult to estimate because online market share में we have more than 85% share, and वहाँ पे we can obviously tell कि यार कितना बड़ा market है. But offline में I think हर नुक्कड़ कोने पे यू विल सी कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके पास बहुत अच्छा काम भी है. तो अगर हम उनसे कभी बात करते हैं कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि वो ऑफलाइन इतना कमा रहे हैं, है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही होगी एस्ट्रोलॉजर्स की कंटेंट पे, एंड दीज गाइज आर ऑल्सो मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो आई थिंक ऑफलाइन या फिर जो ऑफ प्लेटफॉर्म भी जो बिजनेस है, आई थिंक वो भी बहुत बड़ा है. एंड एज वी आर ग्रोइंग वी आर एबल टू टैप इन टू दीज कस्टमर्स ऑल्सो आर कमिंग ऑन दी ऐप. तो हमें तो लगता है अभी तो बहुत बड़ा होगा. वी हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, सो इवन आउटसाइड इंडिया नाउ वी हैव 30% ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मेजरली फ्रॉम यूएस. तो आई थिंक अगर मैं सिर्फ इंटरनेशनल की बात करूँ तो इंटरनेशनल बिजनेस ही इंडिया से बड़ा होगा. Big words there. And that is the diaspora, I'm assuming, Indian diaspora in the US? We also thought so till last year. So this year we got to know like even Native Americans want to consult an astrologer. So if we can provide English speaking astrologers to them, so they are more than happy to consult them. तो वो हमने ट्राई किया, एंड अभी so out of 30% of the revenue coming from outside India, उसकी 50% is coming from Native Americans. So Okay, wow. there's a lot of interest there also. So we have white people also talking to gurus in India now. Interesting. Puneet, also talk to us. You've recently launched Astro Store. That's your D2C vertical. What's the motivation and thought behind moving into products now apart from services? Very interesting, yeah. So we never wanted to do that because हमें जाना ही नहीं था नॉन डिजिटल बिजनेसेस में. बट एट द सेम टाइम वी वुड गेट अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स कि यार आपके एस्ट्रोलॉजर ने ये रेकमेंड किया हमें, और उसके बाद आप कह रहे हो कि कहीं से ले लो जाके. तो उनको मिलता नहीं था ऑथेंटिक प्रोडक्ट, एंड देन दे वुड कंप्लेन. इवन आर NPS वुड नॉट बी दैट गुड विद दीज कस्टमर्स, बिकॉज इनका होता था यार कि गलत सामान खरीद लिया तो आप बताते क्यों अगर बेचते नहीं हो. तो जब इतनी डिमांड आई तो हमने सोचा कि यार हम स्टार्ट करते हैं ये. तो हमने क्या किया, फिर हमने सोर्सिंग स्टार्ट की एंड हमारी ऐप में लिस्ट कर दिया फॉर द कस्टमर्स हु वर रिकमेंडेड बाय आवर एस्ट्रोलॉजर्स, राइट. एंड फिर देखा कि सब लोग हमसे ही खरीद रहे हैं. सो उनमें से कोई भी आदमी बाहर से नहीं खरीदना चाहता, सब लोग हमसे खरीदना चाहता है बिकॉज दे ट्रस्ट अस. तब हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार क्यों ना हम एक D2C ब्रांड ही बना लें इसमें, बिकॉज अगर लोगों को ट्रस्ट है हम पे एंड दे नो कि यार अच्छा सामान उनको चाहिए और लेकिन कहीं से मिल नहीं रहा, उनके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो अगर वो स्टार्ट करेंगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो दैट्स द रीज़न लास्ट ईयर वी थॉट कि यार इसमें अलग ब्रांड बनाते हैं एंड लेट्स सी कितना बड़ा होता है. एंड सरप्राइजिंगली मतलब अभी हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया, 8-9 महीने ही हुए हैं,
सो वी आर डूइंग ए बिजनेस ऑफ अबाउट 100 crores का ARR अभी है हमारा, प्योरली फ्रॉम दोज प्रोडक्ट्स एंड नॉट फ्रॉम दोज कस्टमर्स जिनको एस्ट्रोलॉजर्स ने रेकमेंड किया है, तो वो एस्ट्रोटॉक में चला जाता है। लेकिन ये एस्ट्रोटॉक स्टोर एक अलग बिजनेस है जो सिर्फ डायरेक्टली जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो उनसे बाय कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा हो गया ऑलरेडी। Very interesting, Puneet. And you are talking about, you're saying बहुत डिमांड है, इतनी डिमांड है. Put some numbers to it. कितना एस्ट्रोलॉजर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, कितनी डिमांड आ रही है, how many people are spending how many minutes on your and also because this is a micro transaction sort of a business model that you're running. So give us some numbers on that front. We have more than 8 crore registered customers with us, जिनमें से 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कंसल्टेशन ली है एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। वो फ्री है या पेड है, कुछ भी हो सकती है। जो पेड यूज़र्स हैं उनमें आई थिंक अबाउट 1.8 करोड़ लोगों ने पेड कंसल्टेशन भी ली है। In any given month we have more than 15 lakh transacting customers who are transacting with us. उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कुछ रहता है, 11-12 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें दे टिपिकली आस्क अबाउट द मैरिज। तो हमारा जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, जो प्रॉब्लम है, वो 80-85% इज रिलेटेड टू मैरिज। सो पीपल दे जस्ट वांट टू नो कि उनकी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, शादी के बाद सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। Puneet, also talk to us about, since you've said that there is plans to go public, उस पे क्या timeline है फिलहाल? So we have just started working on it. So अभी our CFO has joined last month and अभी Big 4 या Big 6 auditors को हम हायर कर रहे हैं and I think that will be done. उसके बाद सारी प्लानिंग करके, so the timeline which we have internally is कि 2026 के मिड के बाद विल फाइल फॉर DRHP एंड IPO की टाइमलाइन शायद 2026 एंड या 2027 के स्टार्टिंग में होगी। Puneet, जैसे जैसे you move towards an IPO, there is also concern, there's beliefs that astrology is a pseudoscience. It is a belief that is very personal to people, right? It's not an established science. And when you go public, और scrutiny बढ़ेगी उस चीज़ में. How do you plan to, and what is your answer to people who don't believe in astrology? आई थिंक इंडिया में हमेशा ही लोगों ने फॉलो किया है, तो अगर लोग कुछ भी कहें, लेकिन शादी से पहले लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडलियाँ दिखाने, राइट? वो हम सब लोगों का ऐसे ही हुआ है, ऐसे नहीं है कि किसी ने उसको बाईपास किया हो। मोस्टली लोग नहीं मिलेंगे आपको ऐसे। तो कस्टमर साइड से यार बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसे मैंने बोला कि यार अभी थोड़े टाइम में ही 8 करोड़ कस्टमर्स आ चुके हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड एंड उसको आप निकाल नहीं सकते। अगर कस्टमर को चाहिए अच्छा प्रोडक्ट तो चाहिए उनको, अगर उनको बात करनी है एस्ट्रोलॉजर से तो उनको करनी है। बट वो वेट कर रहे थे ऐसे प्रोडक्ट की जहाँ पे वो रेटिंग रिव्यूज़ देख पाएँ, उसके ऊपर कॉल ले पाएँ कि यार अच्छा ये है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। तो जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में क्या होता था कि वो किसी के पास जाते थे, उनके बारे में उनको रिव्यूज़ नहीं पता, अनलेस मतलब कोई रेकमेंड करता है उनको। एंड उनसे बात करने के बाद ये भी होता था कि बहुत बार जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो ऐसे ही उनको कोई बहुत एक्सपेंसिव रेमेडी बेच देते थे, तो वो भी वी ट्राई टू कंट्रोल अ लॉट कि यार ऐसा ना हो कि कस्टमर्स के साथ कुछ गलत किया जाए। सो वी इंश्योर कि यार हम बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स को हायर करें। सो वी ऑल्सो इंटरव्यू देम बिफोर ऑन बोर्डिंग टू आवर प्लेटफॉर्म एंड उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि किसी के रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, सो वी इवन डीलिस्ट देम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म बिकॉज वी वांट कि यार अगर इतनी डिमांड है, देयर इज़ नथिंग वी नीड टू डू, राइट? वी जस्ट नीड टू इंश्योर कि यार बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर कस्टमर्स की डिमांड है तो यार आई थिंक मार्केट वुड अंडरस्टैंड कि यार इस प्रोडक्ट की डिमांड है, इसीलिए इतने लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड 85% ऑफ रेवेन्यू इन एनी गिवन मंथ कम्स फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो आपको नहीं मिलेंगे ऐसे स्टैट्स कहीं और। तो अगर ऐसा है तो इसीलिए चल रहा है वो। तो आई थिंक आई डोंट नीड टू आंसर एनीथिंग एल्स। Fair enough, Puneet. That is your answer to critics. Also, tell me, Puneet, given the fact, what is the profitability currently as we speak? Profitability is around 18 to 20% is our EBITDA margin, and तो last year we closed at 100 crores का profit. Last year we closed close to I think 250 crores का profit. This year let's see where we go. Awesome. And lastly, Puneet, given that you've proven this market with 250 crores in profits now, competition is also heating up. There's a lot of VC spotlight that is coming to the astrology space. How are you preparing against competition? What will your moat be? Will it be talent? Will it be trust?
Are you willing to raise more money to have that competition be sorted out? आई थिंक कंपटीशन तो इसमें स्टार्टिंग से ही है. सो व्हेन वी स्टार्टेड एट दैट टाइम आल्सो देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग वेल देयर वर लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऐप कमिंग एवरी ईयर. तो अभी भी हो रहा है वो, बट आई थिंक वी आर एबल टू कंट्रोल 85% ऑफ द मार्केट एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमारी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है. द काइंड ऑफ टीम एंड टैलेंट वी हैव इज़ by far better than any other company in the world, not just in India. And I think उसी पे ही हम काम करते हैं. And we are very innovative, we are very fast moving. तो कुछ भी चीज़ें आज भी हम रोल आउट करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं. तो आप देखोगे कि हमेशा वी आर लीडिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. तो वही होता है यार, बड़े बेसिक्स होते हैं बिजनेस के कि यू हैव टू डू एवरीथिंग राइट एंड एग्जीक्यूट फास्ट. वही करते रहेंगे एंड नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, आई थिंक. Awesome, Puneet. Thank you so much for your time, and we wish you all the best for your business going ahead.